वेलकम टू ऑल आवर न्यू लेक्चर ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो आज हम अपने लेक्चर में देखने वाले हैं सिंटैक्स एनालिसिस, और सिंटैक्स एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ पॉज टैगिंग। तो आज हम पॉज टैगिंग और पास ट्री का एक एग्जांपल देखेंगे। तो वीडियो में एंड तक रहो, क्योंकि स्टार्टिंग में पॉज टैगिंग का थ्योरी रहेगा, उसके टाइप्स रहेंगे, और एंड में पास ट्री का टॉप डाउन अप्रोच प्लस बॉटम अप अप्रोच लेके हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, सो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो देखो और अंडरस्टैंडिंग कर लो। सो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड मॉड्यूल ऑफ natural language processing, that is syntax analysis. Okay, so in syntax analysis there is a very important topic, that is pause tagging. If you see in the last year question papers, in every question paper that question arise on the pause tagging is compulsory. Okay, so it is very important. The question come for this particular topic is 10 marks, or it can be a 5 marks also in question number 1. Okay, so you all of you know syntax analysis is nothing but the second stage of your natural language processing. Okay, first level is morphological analysis and second is syntax analysis. In morphological analysis, what we done, we learn with the word level. Okay, so whatever the problem, what are the ambiguities, what are the challenge we face in the words, that we all understood in the second module. What is lexeme, what is morpheme, everything we understood in the second module. That is nothing but the morphological analysis and the first level or first stage of the natural language processing. Now we are moving towards the second stage. This is nothing but the second stage of your natural language processing, that is syntax analysis. Okay, so syntax analysis is important topic is pause tagging. Now first, moving further, I just want to clear that what is mean by pause. The pause is nothing but the part of speech. Okay, P for part of speech, that is pause. Okay, so it is pause tagging. Now what is mean by tagging now, and what is mean by part of speech? You know, there is a one sentence, if there is a one sentence, that each sentence having there is a part of speech, means they having different tags to them, that is example noun, verb, adjective, adverb, depending on the position of that particular word in that sentence. Okay, suppose you're talking about the natural language processing, how the pause is working. Like the first, as an input, suppose sentence is nothing but the group of word. Okay, it given to that as an input. Then if we apply pause tagging over there, then various algorithms are there for pause tagging. Okay, so if we apply algorithm, so the algorithm have the work, means algorithm का काम क्या है कि उसको हर एक वर्ड को उस सेंटेंस में जो आया है उसको टैग करने का. सो टैग करना मतलब सिंपल, उसका जो कुछ भी है वो टैग नहीं करने का, मतलब उसका जो टैग रहेगा वो यूनिक रहेगा, उसका वो बेस्ट बोल सकते हैं हम लोग कि वो एक सिंगल बेस्ट टैग रहेगा. मतलब अगर मैं एक एग्जांपल दूं, आई वांट टू बुक अ फ्लाइट, और सेकंड एग्जांपल है आई वांट टू रीड अ बुक. यहाँ पे देखो बुक एज अ वर्ब वर्क कर रहा है इस फर्स्ट सेंटेंस में, एंड यहाँ पे बुक एज अ नाउन वर्क कर रहा है. Okay, the word is same, word is book, here also word is book, but the tags are different. Here is the tag is work as a verb, and here is a tag as a work as a noun. So what is the end, what we expecting from the pause tagging, that give the single best tag to the every word. Means if book word is there, then book having two tags, one is verb and another is noun. So which is the best tag? So how it's defined, that here is the tag verb is the best tag, and here is the tag verb is the noun. As a human being we understood, but how the system understood that here is the verb will be the best tag and here is the noun will be the best tag. So for that we have to use pause tagging. Understood? To remove this ambiguity, to remove this problem, to remove this limitation, we use pause tagging. So to remove the ambiguities using the pause tagging, there are three ways. How many ways? Three ways. And the three ways are rule based tagging, transformation based tagging, and stochastic based tagging. Okay, now how it's work? These three are only used for the removing this kind of ambiguities or this kind of
challenges from the tag setting. Okay, so what is rule based tagging now? So rule based tagging is nothing but the, in the name only, rule is defined. Okay, now to define the tag to each and every word from that system, there should be a grammar. Okay, and grammar is depend on the dictionaries. There are various dictionaries available. Okay, so dictionary tells us कि उस word को कौन सा tag सूट करेगा. ओके, सो डिक्शनरी टेल अस मल्टीपल टैग्स. जैसे बुक को डिक्शनरी मुझे नाउन भी बोलेगा और वर्ब भी बोलेगा. सो इट्स डिपेंड कि कौन सा टैग उसको फाइनल करेगा. सो इन डिक्शनरी देयर आर मल्टीपल ग्रामर रूल्स. ओके, वी हैव ग्रामर रूल. सो first we apply in the sentence, we compare with the dictionary, then we assign the tag set, and then we check the grammar rule. Okay, and after checking that grammar rule, we assign the perfect tag to them, single best tag. Okay, single best tag we assign to that particular sentence. So rule based क्या बता रहा है मुझे कि डिक्शनरी के साथ पहले वो सेंटेंस चेक करेगा. उस सेंटेंस में जितने भी सारे वर्ड्स है, उतने जितने भी उसको टैग्स असाइन हो सकते हैं, मल्टीपल वो टैग असाइन करेगा. लेकिन बाद में जाके वो ग्रामर के रूल चेक करेगा. अभी ग्रामर के रूल it's depend on every language different. Okay, English language having different grammar rule, other regional language having different grammar rule. Okay, on that basis the grammar rules are there and they assign the best tag. Suppose example over here, make example letter. I want to read a book, full stop. I want to read a book. अभी एक ग्रामर रूल क्या बताता है कि डिटर्मिनेंट फॉलोइंग विद द नाउन. डिटर्मिनेंट मतलब क्या, जो ए द, ओके, ये जो वर्ड्स है वो डिटर्मिनेंट कहलाते हैं. डिटर्मिनेंट. ओके, सो यहाँ पे देखो, आई वॉन्ट टू रीड अ बुक. अभी यहाँ पे बुक के दो टाइप्स आते हैं, वर्ब एंड नाउन. लेकिन ग्रामर क्या बोल रहा है, मेरा ग्रामर का रूल क्या बता रहा है, व्हाट इज टेल्स कि डिटर्मिनेंट ए के बाद जो वर्ड आता है वो मोस्टली नाउन रहता है. ओके, ये मेरा ग्रामर का रूल है. सो दैट बुक विल बी कंसिडर्ड एज अ noun over here. Understood? So these are the rule based tagging. Okay, it's work like this. Now next, moving to the further second part, that is second option, that is stochastic. The stochastic is what, depend on the history. Actually depend on the history मैंने लिखा रहेगा. Okay, working with the history. Okay, stochastic. Now यहाँ पे दो टाइप्स में हिस्ट्री चेक होता है. एक तो वर्ड फ्रीक्वेंसी एंड द टैग सीक्वेंस. वर्ड फ्रीक्वेंसी मीन्स वर्ड की वो वर्ड उस डेटा सेट में कितनी बार आया है और उसको कौन सा टैग दिया है. मतलब बुक वर्ड है जो डेटा सेट में 25 टाइम्स आया है और उसको हर टाइम हमने नाउन ही लिया है, तो उसका टैग सेट ऑटोमेटिकली नाउन सेट कर देगा. ठीक है. और यहाँ पे दूसरे टाइम में टैग सीक्वेंस, अगर वर्ड से वही एग्जांपल लेते हैं बुक का, अगर वह जो बुक वर्ड है वो हमेशा डिटर्मिनेंट के बाद ही आया है, उसको नाउन ही दिया है, तो नेक्स्ट टाइम वो जब भी आएगा तो उसको एज ए नाउन ही प्रेफर करेंगे. सो यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ टैग, वो टैग का सीक्वेंस में उसका प्रीवियस वाला टैग क्या था वो चेक करेगा और उसको टैग असाइन करेगा. सो स्टोचैस्टिक टैग इज डिपेंड ऑन दी हिस्ट्री. ओके, डिपेंड ऑन दी हिस्ट्री ऑफ दी डेटा सेट एंड दी टैग. थर्ड is transformation based tagging. So transformation based tagging is totally combination of rule based and stochastic based. मतलब वहाँ पे ग्रामर भी यूज होगा एंड हिस्ट्री भी यूज होगा. सो मोस्ट ऑफ दी पॉज टैगिंग आर यूज दिस ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड टैगिंग. डिक्शनरी भी यूज करता है, मतलब वो रूल बेस्ड भी ग्रामर यूज करता है एंड हिस्ट्री भी यूज करता है. ओके, सो दिस इज नथिंग बट दी पॉज टैगिंग का हिस्ट्री. Okay, so when you are writing a question, what is pause tagging and its type, you have to mention what is pause tagging, how it's tag defined, and what are the three types to remove the ambiguities of pause tagging. That is rule based tagging, stochastic based tagging, and transformation based tagging. Okay, now move forward to the example of parse tree. Okay, now if you see in the question paper of Mumbai University, you seen like this one question, like just I read out, construct the parse tree for the following sentence using CFG rule
और ये सेंटेंस कौन सा है, बुक द फ्लाइट। ये सेंटेंस के लिए मुझे पास्ट रिक्रिएट करना है फॉलोइंग CFG रूल। अभी ये जो रूल्स दिए हैं, ये जो यहाँ पे लिखे हैं ये वाले, ये आपको एज ए इनपुट दिया जाएगा एग्जाम्पल में। ओके, सो ये रूल्स आपको दिए जाएंगे और बोलेंगे कि टॉप डाउन से लिखो या फिर बॉटम अप अप्रोच यूज़ करो, कौन सा भी अप्रोच यूज़ करो, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट आपका आउटपुट ये सेंटेंस आना चाहिए एट द एंड। ओके, सो एग्जाम्पल इज सिंपल, कंस्ट्रक्ट द पास्ट ट्री फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, ये फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग CFG रूल, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर रूल, CFG मतलब, ठीक है। सो एग्जाम्पल में रहेगा S इक्वल टू VP, VP इक्वल टू वर्ब NP, NP टेंड्स टू determinant and norm, then ND tends to determinant and norm, then determinant tends to that, then norm tends to singular noun, verbs। ये आपका ग्रामर CFG रूल दिया हुआ है और आपको आउटपुट क्या चाहिए, बुक दैट फ्लाइट। नाउ पास्ट ट्री सॉल्व करने के दो अप्रोचेस हैं, एक तो टॉप डाउन और बॉटम अप। टॉप डाउन मीन्स हमें ऊपर से लेके नीचे तक आना है, मीन्स ये अगर पास्ट ट्री है तो हमें ऊपर से स्टार्ट करना है फ्रॉम द टॉप एंड वी हैव टू एंड विद द आउटपुट, एंड बॉटम अप में वी हैव टू स्टार्ट विद द बॉटम एंड वी एंड एट द टॉप। ओके, सो सिंपल टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच। नाउ ये हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि हमें इस ग्रामर का यूज़ करके हमें ये सेंटेंस एट द एंड चाहिए। हमेशा ग्रामर चेक करने का वहाँ पे एक स्टार्ट स्टेटमेंट या फिर S करके दिया हुआ रहता है, वो हमेशा टॉप में रहेगा। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट S इज़ द टॉप, S से ही वो पास्ट ट्री स्टार्ट होगा हमेशा। तो हमेशा ग्रामर में एक S दिया हुआ रहेगा, उसी से हमें स्टार्ट करना है। ये बहुत ही सिंपल है, within the 2-3 minutes you will solve this particular problem if you know। okay, then start tree with the S। तो S कहाँ पे है, only this, और उसके सामने क्या दिया है, VP। so S VP लिख दिया मैंने, ठीक है। so VP ग्रामर में ही चेक करने का, तो VP इज डिवाइडेड इनटू वर्ब एंड NP, तो VP को मैं वर्ब एंड NP में डिवाइड करूँगा। हमेशा चेक करने का मेरा एक्चुअल में फाइनल आउटपुट क्या आने वाला है। सो मेरा फाइनल सेंटेंस क्या है, बुक दैट फ्लाइट, मीन्स मेरा फर्स्ट वर्ड है बुक। तो हमेशा याद रखना, मुझे लेफ्ट हैंड साइड में मेरा पहला वर्ड बुक आएगा। अगर बीच में किधर आपका सपोज ट्री करते समय ये बुक वर्ड पहले नहीं आ रहा है तो आपको वापस जाना पड़ेगा, वापस से शुरू करना पड़ेगा कि वर्ब की जगह पे और कोई दूसरा वर्ड है क्या ग्रामर में जो VP के अंडर आ रहा है, वो चेक करना पड़ेगा। ओके, तो वर्ब तक आए हम लोग। VP के दो टाइप्स है, दो है, वर्ब एंड NP। देन वर्ब यहाँ पे देखने का, ओके, वर्ब को डायरेक्ट बुक ही है तो हमने वर्ब को डायरेक्ट बुक लिख दिया। सो बुक इज़ आवर फर्स्ट, और हमारे आउटपुट में भी फर्स्ट है, नो इशू, बुक यहाँ पे आ गया, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। देन VP का दूसरा टाइप क्या था, NP, राइट हैंड साइड में NP था, तो NP को वापस यहाँ पे चेक करने का, हाँ यहाँ पे NP है। देयर इज़ अनदर NP, नो, ओनली वन NP। NP इज़ डिटर्मिनेंट एंड नॉम, तो डिटर्मिनेंट एंड नॉम मैंने यहाँ पे लिख लिया। देन वापस डिटर्मिनेंट पे आओ, डिटर्मिनेंट का कुछ है क्या यहाँ पे, यस, डिटर्मिनेंट पे दैट दिखा है, मेरा सेकंड वर्ड भी दैट है तो मुझे कुछ इशू नहीं है, मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे दैट लिख दूँगा। सो मेरा सेकंड वर्ड भी आ गया। अभी मेरा लास्ट वर्ड बचा है, दैट इज़ फ्लाइट। सो NP के राइट साइड में क्या था, नॉम, तो नॉम यहाँ पे है, तो नॉम इज़ अ सिंगुलर नाउन, सो यहाँ पे मैंने सिंगुलर नाउन लिखा। और सिंगुलर नाउन किधर गया, ओके, ग्रामर में मेरा रह गया है, सिंगुलर नाउन इट टेंड्स टू फ्लाइट। ओके, सो ये पूरा अपना ग्रामर है एक्चुअली। तो सिंगुलर नाउन के नीचे आएगा मेरा फ्लाइट। तो ये मेरा सेंटेंस होगा, क्रिएट बुक दैट फ्लाइट। ओके, सो सेम वे अगर बॉटम अप, व्हेन यू आर डूइंग दी एग्जाम्पल इन एग्जाम, बॉटम अप से किया है कि टॉप डाउन से किया है वो पता नहीं चलेगा, बट यहाँ पे देखो डिटर्मिनेंट NP, डिटर्मिनेंट नॉम एंड डिटर्मिनेंट नॉम। अगर मैं बॉटम अप से जाऊँगा तो अगर मैं फर्स्ट लिखूँगा बुक, तो बुक के ऊपर आ जाएगा वर्ब, ठीक है, वर्ब यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा है दैट के ऊपर आ जाएगा डिटर्मिनेंट, लेकिन डिटर्मिनेंट के ऊपर
ND भी आ सकता है, NP भी आ सकता है। इफ़ यू सीन ओवर हियर डिटर्मिनेंट एंड नॉर्म, डिटर्मिनेंट ऑफ नॉर्म। सो मेरा सिंगुलर फ्लाइट मतलब अगर मैं बॉटम अप से जा रहा हूँ तो बुक दैट फ्लाइट। तो बुक में ऊपर वर्ब आ जाएगा, उल्टा जा रहा हूँ सपोज। तो उल्टा जाते समय हमें पहले सेंटेंस लिखना है, बुक दैट फ्लाइट। सपोज मैं यहाँ पे करके बताता हूँ, बुक, अभी हम बॉटम अप जा रहे हैं, बुक दैट फ्लाइट। तो बुक दैट फ्लाइट में ऊपर जाऊँगा मैं तो क्या होगा, एरो हमेशा नीचे ही रखने का है। बुक दैट फ्लाइट में ऊपर जाऊँगा तो यहाँ पे क्या आएगा, इफ़ यू सीन दैट ग्रामर, तो वर्ब है, ठीक है। दैट के ऊपर क्या है, इफ़ यू सीन दैट इज डिटर्मिनेंट। इफ़ यू सीन फ्लाइट, फ्लाइट क्या है, सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन के ऊपर क्या है, नॉर्म, नॉर्म। सो डिटर्मिनेंट एंड नॉर्म के ऊपर क्या है, डिटर्मिनेंट नॉर्म के ऊपर ND भी है, NP भी है। सो यहाँ पे ND भी आ सकता है और NP भी आ सकता है। तो यहाँ पे अगर ND लिखा तो मेरा हो रहा है क्या, वर्ब और ND, मतलब मेरा VP आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे NP ही चाहिए तो ही वो VP आएगा, मतलब ND इज़ रॉन्ग। सो मेक श्योर कि जब भी आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हो पास्ट ट्री का, तो आपका जो आउटपुट है उसको चेक करो एंड देन ड्रॉ द ट्री। ओके, आप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को डिवाइड भी कर सकते हो, मतलब फर्स्ट स्टेप लिखो। फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे, सिर्फ SVP ये लिखा। फिर सेकंड स्टेप S के बाद VP के बाद वर्ब NP। मतलब इसी ट्री को आप लोग 1 देन 2 देन 3 ऐसे फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज में डिवाइड करके भी बता सकते हो टू इंक्रीज यूर लेंथ ऑफ प्रॉब्लम। क्योंकि एक ट्री के लिए आपको कोई 10 मार्क देगा नहीं। सो आप वो डिवाइड करो और अच्छे से 3 स्टेप 4 स्टेप वॉटेवर जितने भी स्टेप बनते हैं उसमें दिखाओ एंड देन प्रॉपरली एंड में आपका आंसर लिखो। ओके, सो लाइक दिस वी हैव टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ये बहुत इजी प्रॉब्लम रहता है, ग्रामर दिया हुआ रहता है, आपको जस्ट ग्रामर में चेक करना है कि क्या है और उससे वो चेक करना है कि मेरा फाइनल सेंटेंस कैसे क्रिएट होगा। ओके गाइज, आई होप यू अंडरस्टैंड पॉज टैगिंग एज वेल एज दी पास्ट ट्री प्रॉब्लम। ओके, आई होप सो कि आपको NLP का ये पॉज टैगिंग एंड पास्ट ट्री का प्रॉब्लम समझ में आ रहेगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड प्लीज़ डू सम कमेंट्स। ओके, एंड प्लीज़ इफ़ पॉसिबल देन सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। थैंक यू।